Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Praise thee the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, Hallelujah. glory, Hallelujah. glory We to the praise King. you, Jesus Christ. Hallelujah. 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 Stotram, stotram, Hallelujah. stotram. Hallelujah. Glory to Stotram. God. Praise the Glory to Lord. God. Praise the Glory Lord. to God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Hallelujah. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus आप Christ. सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अभिवादन है। We are so much grateful to God for once again this wonderful time to come online and preach His undiluted word. हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक और अवसर दिया कि हम यहाँ पे आपके सामने में ऑनलाइन आ पाएं और उसके सामर्थ्य अमिश्रित वचन का प्रचार आपके मध्य में हम कर पा रहे Because we हैं, know the power of the word of God. क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God is a living word. परमेश्वर का वचन तो जिंदा वचन है And it has all the power to transform our situations upside down. और परमेश्वर के वचन में सर्व सामर्थ्य है कि हमारी हर एक परिस्थितियों को वो बदल भी सकता है। And I'm very much excited for tonight's word because I know that God is going to talk with each one of us. और आज के इस दिन में जो वचन आपके मध्य में आने वाला है उस वचन के लिए हम बड़े ही उत्साहित हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And I would like to encourage you to expect something from the Lord. और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि जैसे वचन का प्रचार किया जाने वाला है, आप परमेश्वर से बड़ी और अद्भुत बातों की अपेक्षा करिए। Be in His presence with hope and expectations. परमेश्वर की उपस्थिति में आशा और बड़ी अपेक्षा के साथ में आप बैठिए, Because He is the God who says, I will never cut off your hope. क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कहते हैं मैं तेरी आशा को कभी भी नहीं टूटने दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. The psalmist says in the book of Psalms 130 and verse 5, और भजन संहिता 130 और उसके वचन 5 को जब आप पढ़ें, it is written beautifully here by the psalmist, and he has written like this: I wait for the Lord, my soul waits for Him. और भजन का लिखने वाला बड़े ही अच्छे से इस बात को लिखता है कि मैं परमेश्वर की बाट जोऊंगा, उसके वचन पर मेरी आशा बनी रहेगी। Yes, and in His word I do have hope. और वचन का लिखने वाला कहता है कि मैं उसके वचन पर अपनी आशा को रखूंगा। The psalmist says, he is declaring that I'm not waiting for anything else, but my soul is waiting for my Lord. वो कहता है कि मेरी आत्मा, मेरा प्राण उसकी बाट जोहता है, And I have full hope in His word. और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी आशा उसके वचन पर मैंने लगाया है। That means the psalmist was assured that one word from the Lord can change his entire situation or मतलब circumstances. भजन का लिखने वाला अब इस बात को सुनिश्चित तौर पे जानता है कि परमेश्वर की ओर से आने वाला एक वचन उसकी परिस्थिति को बदल सकता है। And that's why he's saying, I'm waiting for और it. इसलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर की बाट जोहता हूँ, And my soul is waiting in मेरा him. प्राण उसकी बाट जोहता है। Hallelujah. Hallelujah. The same thing we have to do. और बिल्कुल यही बात तो आपको और मुझको करना है। Right now you may telling us that I am going through very tough time, a very hard situation in my life. शायद आप ऐसा कह रहे हो कि मैं अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। Yeah, it may possible that right now you are facing a big challenge like Goliath. हाँ, हो सकता है कि आप अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, गोलियात के समान बड़ी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो। Or some of you may are seeing a kind of storm in your life. या हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार के तूफान को देख रहे हो। Or you're saying that I am stuck in the midst of people, those who are continuously harassing me, rejecting me and persecuting me. और आप ऐसे लोगों का सामना भी शायद कर रहे हो जो निरंतर आपको सता रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। Yes, and some of you are saying that I am going through very, very tough financial situation and I am in desperate need. और आप में से कई शायद ऐसा कह रहे हो कि मैं
कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं और मुझे धन की, मुझे इस आवश्यकता की जरूरत है। Some of you are feeling very much weak in your spirit and in your body as well. शायद कोई अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है। You're exhausted fighting your battles. आप अपने लड़ाइयों को लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं। My dear beloved sister, you're saying I am sick since so long. मेरी प्रिय बहन, आप बोल रही हैं कि मैं तो लंबे समय से बीमार हूं। And my dear friend, you're saying when I'll get rid of all my debts. और मेरे प्रिय मित्र, आप शायद ऐसा कह रहे हैं कि मैं कब अपने इस कर्ज से छुटकारा पाऊंगा। We have a good news for you right now. हमारे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है। Oh, the word of God is coming to deliver you. परमेश्वर का वचन आ रहा है कि आपको छुटकारा दे। The word of God is coming to heal your bones. परमेश्वर का वचन आपको आपके हड्डियों में चंगाई देने के लिए आ The रहा word है। of God is coming to break your bondages. परमेश्वर का वचन आ रहा है कि आपको छुटकारा दे, आपके बंधनों को वो खोल दे। The word of God is coming to destroy your challenges. परमेश्वर का कलाम आ रहा है कि आपके तमाम संघर्षों को, चुनौतियों को वो मिटा डाले। Yes, the word of God is coming to make a way out for you from your struggles. हाँ, परमेश्वर का वचन आ रहा है कि आपके संघर्षों के, आपकी चुनौतियों के दरमियान परमेश्वर का वचन आपके लिए मार्ग तैयार करे। And the word of God is coming and bringing salvation for you. और उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन आ रहा है आपके जीवन के लिए उद्धार को लेकर। Oh, if you're saying that I'm a sinner यदि आप ऐसा कह रहे हैं, मैं पापी मनुष्य हूं, and I have done so much wrong in my life, और आप ऐसा कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियों को किया है, and you are living your life each day in guilt and you're trying to commit suicide and you're destroying your life in sin. और प्रतिदिन आप दोष भाव में जीवन को जी रहे हैं, इस बात को सोचकर कि आपने कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, और शायद आप आत्महत्या करने के भी उस समय में पहुंच चुके And you're हैं। saying that I'm a sinner, nobody loves me, and you're hating yourself. और आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो पापी हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप स्वयं से घृणा करने लगे हैं। Oh, then I would like to tell you तो मैं आपको इस बात को बताना चाहते हूं, right now, इसी घड़ी the word of the Lord is coming for you. परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है। Yes, the living word of God. परमेश्वर का जिंदा वचन, The word of God whose name is Yeshua the Messiah. परमेश्वर का वचन जिसका नाम यीशुआ है, जिसका नाम मसीहा है, Oh, the one who is the Savior. जो उद्धार करता है, The one who saves sinners from their sins. जो पापियों का उनके पापों से उद्धार करता है। Hallelujah. हालेलुया। He is coming. वो आ रहा है। He is coming in the form as living word. वो अपने वचन के रूप में आप तक पहुंच रहा है। Open your ears with an expected heart. आप अपने कानों को बड़ी अपेक्षा के साथ में खोल दीजिए। Oh, have hope in your hearts. आप अपने मनों में बड़ी आशा और अपेक्षा को रखिए, Because the word of God is going to deliver you from your sins. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आपके पापों से छुटकारा देने जा The रहा word of है। God has all the power to take you out from the pit of darkness and to bring you into the kingdom of light. परमेश्वर के वचन में वो सर्व सामर्थ निहित है कि आपको उस अंधकार के पाप के गड्ढे से निकाल कर बाहर खींचकर आपको ज्योति के राज में, परमेश्वर के राज्य में और सही स्थान में खड़े कर दे। Hallelujah. Hallelujah. The word of God is full of truth and grace. परमेश्वर का वचन तो संपूर्ण रीति से सत्य और अनुग्रह से भरा हुआ Oh, है। hallelujah. Hallelujah. Come on, my dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, Be excited. उत्साहित हो Be जाइए। excited in the presence of the God. परमेश्वर की उपस्थिति में उत्साहित हो Be जाइए। excited to hear from Him. परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार हो Oh, जाइए। tell your soul, come on, wait for the word of God. It's coming for you. अपने प्राण से कहिए कि परमेश्वर का बाट जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए आ रहा है। Yes, I have hope in His word. परमेश्वर के वचन पे मेरी आशा टिकी हुई And है, my hope will never cut off. और मेरी आशा कभी भी नहीं तोड़ी My God जाएगी। will never put me to shame. मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। Let's open our mouth. आइए अपने मुंह को खोलिए, Give Him glory. परमेश्वर को महिमा Give दीजिए, Him praise and honor. परमेश्वर का सारी स्तुति दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। Before we go in the word of God, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में I जाएं, want you to prepare your heart. मैं चाहती हूँ कि आप अपने मनों को तैयार कर लीजिए। I want you to listen
to us with an expected heart, because not we but the Holy Spirit is going to talk with you. मैं चाहती हूँ कि आप में से प्रत्येक हमको मत सुनिए, हमारे द्वारा परमपिता परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं और आप बड़ी अपेक्षा के साथ में आप यहाँ The Holy बैठिए। Spirit will surely answer all your doubts. पवित्र आत्मा निश्चित तौर पे आपके तमाम उलझनों का और प्रश्नों का उत्तर देंगे। Be excited. उत्साहित हो Be जाइए, encouraged. उत्साहित हो जाइए। Hallelujah. Hallelujah. Oh, haraba shendara la rabba- Rihindara la ba sokori andi andi Open your ala. mouth and start praising Him. आइए अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर की स्तुति करिए। Come on, let's give Him praise. आइए उसको सारी महिमा दीजिए, No one will be quiet. कोई भी चुप ना रहे। Let our heart glorify the आइए हमारा Lord, मन उसको महिमा दे। the living God. जिंदा परमेश्वर, Oh, our Creator. हमारा सृष्टिकर्ता, Oh, loving, gracious Heavenly Father. स्वर्गीय प्रेमी पिता, Oh, He is the God who is good all the time. वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो भला परमेश्वर है। Oh, He loves sinners. वो तो पापियों से प्यार करता But है। yes, He hates sin. हाँ, वो पाप से घृणा करता है। And He is here to deliver you. और परमेश्वर यहाँ पे है कि आपको छुटकारा He is दे। here to redeem you. परमेश्वर यहाँ पे है कि आपको छुटकारा He is दे। here to heal you, my dear sister. परमेश्वर यहाँ पे है कि आपको चंगाई दे मेरी He is बहन। here. He is here to break all your strongholds. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर यहाँ पे है कि आपके तमाम उस मजबूत गढ़ों को वो ढा He दे। is here setting people free from their fear. परमेश्वर यहाँ पे है कि वो उन लोगों को जो भय में जीवन जी रहे हैं Pray स्वतंत्र for you, my करे। dear brother. मेरे प्रिय भाई, मैं आपके लिए You प्रार्थना are करती living हूँ। your life in fear every day. आप हर दिन अपने जीवन को भय के साथ में जीते हैं। Right now in the presence of God. इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति, Oh, in Jesus' mighty name we declare freedom for your life. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के लिए स्वतंत्रता बोलते हैं। Body from all fears. हर एक प्रकार के पाप के बंधनों से आजादी बोलते हैं। Receive the spirit of sound mind. इसी समय आप वो शांत मन को ग्रहण कर लीजिए। Receive it in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से We pray. हम प्रार्थना करते We हैं। pray for you, my dear auntie. हम अपने प्रिय आंटी आपके लिए प्रार्थना करते You have हैं। a lot of pain in your body. आपके शरीर में बहुत दर्द रहता है। Oh, in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम Oh, we से pray. हम प्रार्थना करते Holy हैं। Spirit, let your fire come on her right now. पवित्र आत्मा इसी समय प्रिय आंटी के ऊपर में आपकी सामर्थ उतर Let आए। your fire come in her bones. इसी समय पवित्र आत्मा आपकी अग्नि उतर आए And let her bones be restored with new health. और इनकी हड्डियों में आप नया बल दीजिए, नया श्वास Yes, दीजिए, new strength. नया बल दीजिए प्रभु। Every pain get out in Jesus' name. इनके शरीर से हर एक प्रकार का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद That प्रभु you are here. कि आप यहाँ पे हैं। Lord, talk with us. पिता, हमसे बोलिए, बातचीत करिएगा, Talk through us. हमारे द्वारा बात We करिएगा। surrender all to you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हाथ में सब कुछ सौंप देते We are हैं। nothing without you, my Lord. मेरे प्रभु, आपके बगैर हम कुछ नहीं And we हैं can't do anything without you. और प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। Yes, Jesus. हाँ प्रभु We यीशु, need more of you. हमें आपकी अति आवश्यकता है। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा देते हैं। Greetings to you all once again in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से आप सबों का अभिवादन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Praise be to Jesus Christ our Lord and Savior. सारी स्तुति अपने प्रभु उद्धारकर्ता मसीह यीशु को देते हैं। Salvation, glory and power belongs to our God. हालेलुया। उद्धार, सामर्थ और महिमा हमारे परमेश्वर की For है। the Lord God Almighty who reigns forever. सर्वशक्तिमान जोरावर परमेश्वर जो सदा सर्वदा राज्य करता है। He is our Abba, He is our Father. यस, वो ही हमारा अब्बा है, वही हमारा पिता है। He is our everything. वो हमारे सब कुछ है Oh, He loves us so much. और वो हमसे बेइंतहा प्रेम He करता is है। the good Lord. वो ही भला परमेश्वर He है loves to do good and good. और भलाई ही करने से वो प्रसन्न I'm होता so है। much excited and thrilled as the Holy Spirit has brought a very powerful message for you all. मैं बहुत उत्साहित हूँ मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा से इस सामर्थी वचन को आपके लिए पाकर। I would say this is the
power of God that is coming to you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ्य है जो आज आप तक आ रहा Yes, है। indeed, this is the power of the trine God that is going to come and to touch ये you. वास्तविकता में खुदावन की सामर्थ्य है जो आज आप तक आके आपको स्पर्श करेगी। Yes, this is your time. ये आपका समय है। This is the time where God is going to deliver ये you. वो समय है जब परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। No matter whether we are physically before you or through online. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें यहाँ पे शारीरिक रूप से देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन डिजिटल तरीके से। God is all powerful to talk through any medium. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है जो कि हर माध्यम के द्वारा अपने लोगों से बात कर सकता और स्पर्श कर And I सकता firmly है। believe और मैं विश्वास करता हूँ that this is going to be a very powerful time for you all. कि ये बहुत ही सामर्थ्य समय होगा सबों के लिए। Hallelujah. So Hallelujah. get excited with your Bible. आइए अपने बाइबल को लेकर हम उत्साहित हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Are you a person today who are struggling with the sin or with any sort of weakness? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो महसूस करते हैं कि आप निर्बल हैं या फिर किसी प्रकार के पाप में फंसे हुए Are you हैं? a person who are struggling with bad habits? या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बुरी आदतों से आप बहुत ज्यादा उससे आप परेशान If हैं? you are saying yes, I am such person, और अगर आप कहते हैं हाँ मैं ऐसा हूँ, then this message is for तो ये you. संदेश निश्चय आपके लिए है। And you tried so many times to leave those bad habits, but you could not even leave it by your own strength. आपने कई बार प्रयास तो किया है कि अपनी बुरी आदतों को आप छोड़ दें, परंतु आप अपनी सामर्थ से ये नहीं कर पा रहे You हैं। are failed. आप निरंतर असफल हुए हैं। Then this message is for तो you. आपके लिए ये संदेश है। You tried by your own strength and willpower to get rid of those sin that you do in secrets. ऐसे पाप जो आप अकेले में छुप कर करते हैं जिससे लोग अनजान हैं, उससे आप अब परेशान हो चुके हैं और छुटकारा चाहते You हैं। tried to get rid of it by your strength and willpower. आपने अपने विल पावर से अपनी सामर्थ्य से पूरी कोशिश की है कि आप इसे छोड़ दें, But you are again failed. लेकिन आप बार बार असफल हुए हैं। I want to tell मैं you, आपसे कहना चाहता this हूँ message is for ये you. संदेश आज आपके लिए है। Even in the history of mankind, अगर आप मनुष्य के इतिहास को देखें, people they wanted to get rid of from their sinful life. हर समय इस बात को देखा गया है कि मनुष्य जाति अपने पापों में फंसे हुए उसे छुटकारा पाने के लिए ललाहित रहती But they है, are failed. लेकिन वो बार बार वो असफल हुए। They tried using their own strength and willpower. मनुष्य जब अपनी सामर्थ्य अपनी इच्छा की शक्ति के द्वारा करना चाहता है वो असफल हो But जाता है। none of them could fully get victory over the secret sins. लेकिन किसी मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने पाप पर जय पा सके, And they all failed. और हर एक उसमें से मनुष्य असफल होते Because गए they were trying to get rid of from sinful life, sinful nature by their own strength and by their own willpower. मनुष्य इस बात का प्रयास करता रहा कि वो अपनी शारीरिक सामर्थ्य से या अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने पापों पर जय पाए। When you read from the Word of God, जब आप परमेश्वर के कलाम उसके वचन में से पढ़ते हैं, Romans chapter 3 verse 23 जब आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका अध्याय 3 और वचन 23 and chapter 3 and verse 10, और उसी रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 10, it is written here, यहाँ पर यूं लिखा है, for all have sinned and fall short of the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है सबों ने, हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। None is righteous, not even one. एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, Because they have sinned against God and they fall short of the glory of कि God. हर एक मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो Now गया। the question comes, अब यहाँ सवाल उठता है what is sin? कि ये पाप क्या है। People they come and they ask, what is sin? लोग पूछते हैं कि पाप क्या है। According to the Bible, परमेश्वर के वचन बाइबल पवित्र शास्त्र के the अनुसार definition of sin is, अगर आप पाप की परिभाषा को देखें it's very simple. तो ये बड़ी आसानी से यहाँ लिखा गया है, Disobeying the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनाज्ञाकारी होना। This is the definition of sin. परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन का अनाज्ञाकारी होना ही पाप है। Let me repeat this
this for मैं you. फिर से दोहराता हूँ, What is sin? क्या है पाप? Disobeying the Almighty God. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता में चलना पाप We है। all know Adam and Eve that disobeyed God, sinned against Him. हम जानते हैं कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर के अनाज्ञाकारी होकर पाप किया। Yes, disobeying the God, the Father, is sin. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की अनाज्ञाकारिता में चलना पाप है। Not keeping His commandments is sin. उसकी व्यवस्था को ना मानना पाप है। Ignorance towards what the God says you to do is sin. उस बात के लिए अनजान बने रहना जिस बात को करने के लिए परमेश्वर आपसे कहते हैं वो पाप है। Not taking God and His commandments seriously is sin. परमेश्वर के प्रति गंभीर ना होना पाप है, उसके वचन के प्रति गंभीर ना होना पाप So है। as just I have shared from Romans 3:23, जिस प्रकार से हमने रोमियो की पत्री अध्याय 3:23 में से पढ़ा है, for all have sinned. इसलिए कि सबने पाप किया In है। another words, और दूसरे शब्दों में अगर कहूं all had disobeyed the Father God कि हर किसी ने परमेश्वर पिता का अनाज्ञाकारी सेवक में रहे हैं and did not keep His commandments. और उसकी आज्ञाओं को न माना, And therefore, और इसलिए all fall short of the glory of हर God. एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। Therefore it is written, और इसीलिए यूं लिखा है none is कि righteous, कोई धर्मी नहीं, not even one. एक भी नहीं। This is the definition of sin. यही तो पाप की परिभाषा है। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, I want you to be vigilant for sin. मैं चाहता हूं कि आप जाने पाप क्या है। I want you to be vigilant. मैं चाहता हूं कि आप चौकस रहे पाप के I प्रति। want you to be very serious. चाहता हूं कि आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें। I don't want you to be ignorant about sin. मैं नहीं चाहता कि आप अनजान बने रहें पाप के विषय में। And that's why I want to ask you one more question. इसलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता What हूं, sin does? क्या पाप आपके लिए करता है? Yes, what sin does? पाप क्या करता है? Sin takes you away from God. पाप सर्वप्रथम आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। Yes, sin takes you away from God. पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। A person who lives in sin जो व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है cannot live in the presence of वो God परमेश्वर की हजूरी में नहीं जी because सकता, our God is the holy God. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो महापवित्र है। You can read in book of Genesis, आप उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ सकते हैं, Adam and Eve that disobeyed God जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता का पाप किया committed sin against, और पाप किया उन्होंने परमेश्वर के विरोध, and they had to leave the Garden of Eden. और परिणाम ये हुआ कि आदम और हव्वा को वो अदन की वाटिका छोड़नी पड़ी। They had to leave the Garden of Eden, the glorious presence of God, the Creator. उस स्थान को उन्हें छोड़ना पड़ा जहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा में वो चलते फिरते थे। This is what the sin does. ये पाप ने किया। Sin defiles you spiritually, physically, and mentally. पाप आपको आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से भी खराब कर देता है। Let me repeat it for मैं फिर somebody. से कहना चाहता हूं किसी के लिए, Sin defiles you spiritually, physically, and mentally. जो पाप है वो आपको आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से भी हानि पहुंचाकर खराब कर देता That's है। why do not be ignorant about sin. इसलिए आप पाप के विषय में अनजान मत बने रहिए। Sin separates you from the Father God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से आपको अलग कर देता है। Yes, sin separates you from the Father God. पाप आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता The है। Holy Bible says पवित्र शास्त्र में बताता है, in Leviticus chapter 11 verse 44 नई व्यवस्था की पुस्तक उसका अध्याय 11 वचन उसके 44 में and Hebrews chapter 11 verse 14, और इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 14 में God is the holy God सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र 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 है and no one can see God without holiness. और कोई भी परमेश्वर को पवित्रता के बिना नहीं देख सकता। You need faith to please God. और आपको साथ ही विश्वास लगेगा परमेश्वर को प्रसन्न करने के We लिए। normally read these scriptures in the Bible. हम पढ़ते हैं इन वचनों को बाइबल में You need faith to please God. कि मुझे विश्वास चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के But लिए। holiness is required to see the holy God. लेकिन अगर आप उस पवित्र परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको पवित्रता लगेगी। Let me repeat this. फिर से दोहराता हूँ, You need faith to please God. विश्वास
प्रयास लगेगा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। And holiness is required to see the holy God. और पवित्र 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 परमेश्वर को देखने के लिए पवित्रता लगेगी। What sin does? क्या करता है पाप? Sin brings eternal death. वो पाप तो मनुष्य के जीवन में अनंत काल की मृत्यु को ले आता है। The Holy Bible says in Romans chapter 6 verse 23, पवित्र शास्त्र में बताता है रोमियो 6:23 में, for the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Yes, the wages of sin is death. जी हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। Eternal death. ऐसी मृत्यु जो सदा के लिए है। Complete separation from the God Almighty. सदा के लिए उस परमेश्वर से अलग हो जाना। This is what sin does. यही तो पाप करता है मनुष्य के जीवन में। So what is sin? क्या है पाप? Sin is when you disobey God. पाप वो है जब आप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में जीते हैं। Yes, disobeying God is sin. अनाज्ञाकारिता में रहना, परमेश्वर के विरुद्ध चलना पाप है। And what sin does? और पाप क्या करता है? Just we have shared with अभी you. मैंने बांटा है आपसे Sin separates you completely from the Father God. कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पाप आपको बिल्कुल अलग कर देता है। Completely separation. बिल्कुल अलग कर देता Are है। you living your life in sin today? क्या आज आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप में जीवन जी रहे हैं? Let me tell you, sin will destroy you, my dear brother, my dear मेरे sister. भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पाप आपको बर्बाद कर देगा। Yes, sin destroys completely. पाप आपको नाश कर देगा। Sin will take you nowhere, पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, but it will take you to hellfire. लेकिन वो पाप आपको उस नरक की आग तक पहुंचा And देगा। that's why there was a huge and tremendous need of a savior. और इसीलिए वचन बताता है कि मनुष्यों के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Because sin constantly used to destroy mankind. कि हम जानते हैं कि शुरुआत से ही पाप जो है वो मनुष्यों को नाश करने का प्रयास करता आया है। And that's why a savior is और required. इसीलिए तो एक बचाने वाले उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Bible says बाइबल बताती है God is love. ओ परमेश्वर तो प्रेम है, And God loves और mankind. परमेश्वर मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करता है। God's love for mankind is called the agape love. और परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्यों के प्रति है उसे हम अगापे प्रेम कहते हैं। And the God who has agape love for mankind, और वो महान परमेश्वर जो मनुष्यों से अगापे प्रेम रखता है, he knew that mankind cannot get victory over sin by their own strength and वो willpower. जानता है कि मनुष्य जाति अपने जीवन में पाप में खुद की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति से जय नहीं पा Because सकते, God is our creator. क्योंकि परमेश्वर तो हमारा सृष्टि करता है। He knows how he has created वो us. जानता है हमारी सृष्टि को That we are weak. कि हम कमजोर हैं, We are not all powerful. हम सर्वसामर्थी नहीं, But God is powerful. लेकिन परमेश्वर सर्वसामर्थी है। And only that powerful God can deliver a weak person. और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक निर्बल मनुष्य को छुड़ा सकता And है। therefore God himself made the plan of salvation for और इसीलिए mankind. तो परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए उद्धार की योजना We बनाई। all know the golden words from the Holy Bible. हम सब जानते हैं उस सुनहरे वचन को जो बाइबल में पाया जाता John है। chapter 3 verse 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और वचन 16। For God so loved the world that he gave his only begotten son, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Yes, God himself, he first loved us. तो उस महान परमेश्वर ने सर्वप्रथम हमसे मनुष्यों से प्रेम रखा। Yes, God himself took the initiative to save sinners. और परमेश्वर ने इस बात के लिए कदम बढ़ाया कि पापियों का उद्धार करे। Because Bible reported क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है everybody is कि sinner. हर मनुष्य ने पाप किया है, No one is righteous. कोई भी धर्मी नहीं। And that's why God made the plan of salvation for और mankind. इसीलिए तो परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए उद्धार की योजना बनाई। God did not make this plan of salvation only for Christians. और
और परमेश्वर ने इस उद्धार की योजना केवल मसीहों के लिए बनाई, ऐसा नहीं The है। word of God says, for God so loved the world. वचन तो कहता है परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा। Yes, every individual who lives in the face of this earth, God loves them. हर एक वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर बसता है, इस जगत में रहता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखते And हैं। that's why Father God himself, he took this initiative for making the plan of salvation for और mankind. इसीलिए परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को बचाने के लिए उद्धार की योजना बनाई। Yes, God the Father himself sent his beloved begotten Son Jesus Christ into this world to be a savior for the world. आमीन। और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि मनुष्यों का उद्धार करे। Yes, God himself gave his only begotten Son into this world so that he be the savior of this world. परमेश्वर पिता ने खुद से होकर अपने इकलौते बेटे, प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। Yes, he sent the darling of heaven for you and for me उसने स्वर्ग के प्रिय को आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में भेजा to save us. ताकि वो हमारा उद्धार करे। My dear beloved people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोग, I am introducing you about a savior and his name is Jesus Christ. मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ कि आपका परिचय करा दूं उस उद्धारकर्ता से जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। Nobody can save you कोई और आपको नहीं बचा सकता from hellfire, उस नरक की आग से, but only Jesus Christ has all the power to save you. लेकिन मात्र यीशु मसीह प्रभु के पास वो सामर्थ है कि आपको उस नरक की आग से खींच निकाले। If you are listening to us अगर आप सुन रहे हैं आज हम, and you know your status of your life, how much you are deeply rooted in sin, और आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में आपकी क्या परिस्थिति है, आप कितने पाप में हैं, you yourself know all your secret sin, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं आपके उन छुपे हुए पाप को। then this message is for ये you. संदेश आज आपके लिए है। The Savior Jesus Christ is available for you मेरा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो आपके लिए भी उपलब्ध है। because you tried from your own strength and willpower, but you are failed. आपने अपनी इच्छा शक्ति लगाकर, अपना बल लगाकर बड़ा प्रयास किया है पाप से छूटने का, पर आप असफल हैं। But I want to say this to you, my dear sister, my dear कि brother. मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Try Jesus today. यीशु मसीह को आज एक बार आप ट्राई कर लीजिए। Try the Savior today. यीशु मसीह को आज चक्कर देख Oh, लीजिए। allow Him to work in your life उसको अपने जीवन में काम करने because दीजिए, He is the Savior to save क्योंकि you. वो यीशु मसीह उद्धार करता है, जो आपको उद्धार करता है। The Bible says बाइबल बताती है, in 1 Timothy chapter 1 verse 15 जब आप पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 15, that Jesus Christ came into this world to save sinners. कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया कि पापियों का उद्धार करे। Yes, He came into this world to save sinners. प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने का, और वो ये था कि वो पापियों का उद्धार करे। Who are living their life in sin. ऐसे मनुष्य जो पाप में जीवन जी रहे थे, And Jesus came to save such और people. यीशु मसीह आया है कि ऐसे लोगों का उद्धार करे। Today is your day. आज आपका दिन है। I don't know from where you are listening. मैं नहीं जानता किस स्थान से आप मुझे सुन रहे हैं। I don't know how much you have been struggling. मैं नहीं जानता कि आप कितना आज संघर्षरत हैं अपनी I परिस्थिति don't में। know how much people have despised you because of your sinful life. आपके इस पाप में बुरी आदतों के जीवन के द्वारा आपके लोगों ने आपको तुच्छ जाना है। One thing that I know, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ, Jesus Christ the Savior is available for you to save you. यीशु मसीह नासरी जो उद्धार करता है, जो प्रभु है, वो आज उपलब्ध है आपको छुड़ाने के लिए। Because of the sinful nature, you are lost. आपके अपने पाप में जीवन में बिल्कुल खो चुके हैं। You are completely lost in this world doing various sin. आप इस संसार में खोए हुए हैं और नाना प्रकार की बुरी आदत और पाप में फंस चुके हैं। Jesus has come for you. लेकिन यीशु आपके लिए भी आया है। This is what the word of God यही says. तो परमेश्वर का वचन कहता है। Luke chapter 19 verse 10. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10, For the Son of Man has come to seek and to save that was lost. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें बचाए, उनका उद्धार करे। Savior Jesus Christ has come to seek you and to found वो you. उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो आपको ढूंढ निकाले और आपका उद्धार करे। Yes, Jesus Christ the Savior has come to seek of you, for you and to find you wherever you प्रभु are. यीशु मसीह आपको खोजते हुए आए हैं कि वो आपको
आपको ढूंढ निकाले और आपको बचाए। This message for you, my dear sister, my dear मेरी बहन, brother, मेरे भाई, ये संदेश आपके my लिए dear है। people of God. This message is for मेरे you. प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वचन आज आपके लिए This है। is the pure gospel यही तो सुसमाचार है that carries the power of जो God. परमेश्वर की सामर्थ रखता है। And today is your day. और आज आपका दिन है God is going to touch क्योंकि you. परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे। God is even talking with you now इसी वक्त परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं because God has divine plan for क्योंकि you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक ईश्वरीय योजना है। Through His word, He wants to deliver you. अपने इस वचन को भेजकर वो आज आपको छुड़ाना चाहता And है He has great plans for you. और उसके पास आपके लिए बड़ी योजनाएं हैं। Matthew chapter 1 verse 21 says, सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21। she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। The main purpose of Jesus Christ to came into this world, प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का एकमात्र उद्देश्य yes, to save sinners. कि पापियों का उद्धार करे। For save sinners. ओ पापियों का उद्धार करे। I am preaching to somebody. आज मैं किसी के लिए यहाँ से प्रचार I कर रहा am हूँ। preaching Jesus Christ the Savior. यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का प्रचार कर रहा हूँ। And God took this initiative for you. ओ परमेश्वर ने आपके लिए किया है। 1 John chapter 4 verse 14. अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका अध्याय 4 वचन 14। We have seen and testified that the Father God has sent the Son to be the Savior of the world. हमने इस बात को देखा और इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का उद्धारकर्ता कहकर भेजा। One purpose, एक उद्देश्य to save sinners. ओ कि उद्धार पाए पापी। Yes, I am preaching to somebody about Jesus Christ the मैं Savior. किसी से तो आज कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। Jesus Christ the Savior is available now for you, my और प्रभु यीशु sister. मसीह उद्धार करता आज भी इसी क्षण मेरी बहन आपके लिए उपलब्ध है। Jesus Christ the Savior is available for you to forgive you. ओ प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता आपका यहाँ पर है कि आपके पापों से आपको क्षमा करे। Jesus Christ the Savior is available now to cleanse you from all your sinful nature. प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता आपके लिए उपलब्ध है कि आपके हर एक पापों को धोकर साफ कर दे। Yes, He will cleanse you by His precious and mighty blood. ओ वो सर्वशक्तिमान है, उसके सामर्थ्य लहू से आपको धोकर शुद्ध करेगा। Jesus Christ the Savior is available for you to make you new person. और वो उपलब्ध है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता कि आपको एक नया व्यक्ति बना दे। Jesus Christ the Savior is available to embrace you. ओ प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध है कि आज आपको गले लगा ले। Jesus Christ the Savior is available to give you new life, even a life in abundance. प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता उपलब्ध है कि आज आपको जीवन और बहुतायत का जीवन Yes, दे। God wants to save you through His Son Jesus क्योंकि Christ. परमेश्वर की यह मर्जी है कि वो अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार करे। God doesn't want anyone to be perished in the hellfire. परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी मनुष्य नरक की आग में जाए। And that's why God Almighty, He has made Jesus Christ available even at present to save. और इसीलिए तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया जो आपका और मेरा उद्धार करता John है। chapter 3 verse 17 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 17। God did not send Jesus Christ that the world be punished by Jesus, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, but world be saved through Jesus Christ. परंतु इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार So in पाए। order to receive this salvation, the forgiveness from Jesus, what do you have to do? तो अपने इस उद्धार को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से आपको क्या करना होगा? In order to be saved by Jesus and to escape from hellfire, what do you have to do? क्या करना होगा आपको कि आप उस नरक की आग में ना जाए, पाप से आपका उद्धार हो जाए? Just repent, believe and call Him. तीन ही बातें यहाँ पर हैं। सबसे पहली बात आपको अपना मन फिराना है। Just repent. पहली बात आपको अपना मन फिराना है। Say that, Abba, Father, God Almighty, I am a sinner. आपको इस बात को मान लेना है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ And I repent of
my sin. और मैं आज अपने पापों से मन फिराता हूँ। And I believe upon Jesus और Christ. फिर आपको विश्वास लाना है। And then you have to call unto Jesus. आपको विश्वास लाना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा उद्धार करता है और उसके नाम को पुकारना है। The Bible says in Romans chapter 10 verse 9. रोमियो की पत्री अध्याय 10 और वचन 9 में बाइबल बताती है, Because if you confess with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. आमीन। कलाम कहता है कि अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करोगे कि परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया, Amen. तो तुम्हारा उद्धार होगा। You will be saved. आप उद्धार पाएंगे। See, the word of God is saying that means it will take place. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ऐसा ही होगा। What you have to do? आपको क्या करना है? Just repent, believe and call unto Jesus. आमीन। आपको मन फिराना है, विश्वास लाना है और मुंह से उस खुदा को बुलाना है, उसे पुकारना है। Romans 10:13 says, और रोमियो की पत्री उसका अध्याय 10 वचन 13, for everyone who calls on the name of Jesus will be saved. आमीन। रोमियो 10:13 कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार In पाएगा। order to be saved, you don't have to do anything else but just to believe on Jesus. आमीन। उद्धार पाने के लिए आपको और मुझे कुछ और नहीं परंतु विश्वास करना होगा। Just believe on Jesus that he is the Son of God. विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर पिता का बेटा है प्रभु यीशु You मसीह। need to believe that Jesus Christ is this Savior, only he can deliver कि me. प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है जो मुझे छुड़ा सकता है। Jesus Christ the Savior. यीशु मसीह उद्धार करता My dear beloved people of है। God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, let me remind you once मैं एक बार again, फिर से आपको ये स्मरण दिला दूं, by our own strength we cannot get victory over sin and death. मनुष्य अपनी सामर्थ, अपनी इच्छा शक्ति से पाप और मृत्यु पर कभी जय नहीं पा सकता। We need the Savior. आपको और मुझे हर एक मनुष्य को उद्धारकर्ता की जरूरत We है। need Jesus Christ the Savior. प्रभु यीशु मसीह उस उद्धारकर्ता की हर एक मनुष्य को जरूरत है। Jesus Christ is available for you और वो now. प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता इसी क्षण आपके लिए उपलब्ध है। You need a Savior. आपको एक उद्धारकर्ता चाहिए And only Jesus Christ can save you from all your और sin. यीशु मसीह एकमात्र है जो आपको और मुझे हर एक पापों से उद्धार देता है। People will despise you. लोग आपको तुच्छ जान सकते हैं, Savior will receive you. लेकिन वो उद्धारकर्ता आपको अपनाएगा। Yes, people will despise you because you are a sinner. लोग आपको तुच्छ जानेंगे और कहेंगे ये तो पापी है, But Jesus Christ the Savior will receive you as you are. लेकिन जैसे भी आप हैं, जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं वो आपको गले लगाता, आपको अपना लेता He है, came for sinners. क्योंकि वो आया है पापियों के The लिए। uniqueness of Jesus Christ is यीशु मसीह की क्या विशेषता है that he came to save sinners. कि यीशु मसीह आए पापियों का उद्धार करने। Sin will take you to the hellfire, वो पाप आपको परमेश्वर से अलग करके नरक में ले जाता but है, sinner will take you to the heaven. परंतु But Savior will take you to the heaven. परंतु उद्धार करता आपको स्वर्ग ले जाता Let me है। repeat this. मैं से कहना चाहता हूँ, Sin will take you to the hellfire. पाप आपको ले जाएगा उस नरक की आग में, Savior will take you to the eternal heaven. लेकिन उद्धार करता आपको ले जाएंगे उस अनंत काल के जीवन के स्वर्ग में। Sin will give you eternal death. वो पाप आपको अनंत काल की मृत्यु देता है, Savior will give you everlasting life. लेकिन वो उद्धार करता आपको अनंत जीवन देता है। Sin will take you nowhere, but it will destroy you. पाप आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगा परंतु अंत में नाश कर देगा। But Savior will receive you as you are. He will cleanse all your sins and he will make you something. लेकिन उद्धार करता आपको अपनाते हैं जैसे भी आप हैं, आपको अपने लहू से धोकर पाक साफ शुद्ध करते हैं और आपको वो अनंत जीवन देते हैं। Jesus Christ is the Savior. प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता He है is available for you. और वो आपके लिए उपलब्ध है। My dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, I want you to just receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior मैं today. चाहता हूं कि आप अपने जुबान से आप इस बात को अपने हृदय में विश्वास करें, जुबान से अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है। Only you have to do this. आपको यही करना है, Just believe. विश्वास करना है। Rest all the Savior Jesus will do in your आपको और life. मुझे
मुझे केवल विश्वास करना है, बाकी सब वो उद्धार करता आपके लिए करता है। I personally believe that the Lord God Almighty has talked with you this day. मैं विश्वास करता हूँ व्यक्तिगत रीति से प्रभु ने आपसे बोला और बातचीत की है। This is the time when we are going to pray for you all. ये समय है जब हम आप सबों के लिए दुआ करेंगे And we are going to bless you. और आशीषों की घोषणा करेंगे That from today onwards your life and lifestyle will be changed कि completely. आज से आपका जीवन और जीवन शैली बदल जाएंगे And God will lead you. और परमेश्वर आपको आगे May बढ़ाएंगे God use you mightily और for His glory. और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल Oh, करेंगे। let's pray. आइए दुआ करेंगे। राकाबा शेंदे रेले रे बोहो। Thank you Lord for Jesus. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए। Thank you Father God धन्यवाद पिता परमेश्वर that you sent Jesus for us. कि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर भेजा। Yes Jesus. हाँ प्रभु यीशु। You came for us Lord from heaven. प्रभु यीशु मसीह आप तो हमारी खातिर स्वर्ग से आए। The one who knew no sin became sin for us on the cross of Calvary. वो जो पाप से अज्ञात था हमारी खातिर वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में पाप बन गया। Jesus became curse for us on the cross. प्रभु यीशु मसीह तो कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमारे लिए पाप बन गए। Jesus, you took all our sicknesses and infirmities upon you. प्रभु यीशु मसीह आपने तो हमारी सारी कमजोरियों को, पाप को, दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने ऊपर में ले लिया। Yes, Jesus, you bore my sickness. हाँ प्रभु यीशु मसीह आपने मेरी बीमारियों को ले लिया। And by your stripes we have been healed. और प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। Jesus, प्रभु यीशु, you were trampled for our peace. आप तो कुचले गए ताकि हम शांति पाएं। Jesus, you took our death upon you. प्रभु यीशु मसीह आपने तो हमारी मृत्यु अपने ऊपर में ले लिया। Because of sin, Lord, we were having death on us. क्योंकि पाप के कारण वो मृत्यु जो हमारे ऊपर में आई थी, But Jesus took our death. परंतु प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने हमारी उस मृत्यु को अपने ऊपर में ले लिया। Jesus, you died for us. प्रभु यीशु मसीह आप हमारी खातिर मर गए। He was buried for us. प्रभु यीशु मसीह आप हमारी खातिर गाड़े गए। And he rose again on the third day by the power of the God Almighty. प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से फिर से पुनर्जीवित कर दिए गए परमेश्वर की सामर्थ के जरिए। And Jesus Christ is alive. और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं। Jesus Christ is a risen Savior. प्रभु यीशु मसीह तो पुनरुत्थित उद्धार करता है। The Savior who lives forever. ऐसा उद्धार करता जो अनंत काल के लिए जीवित है। Who was, who is, and who is to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। The King eternal. जो अनंत काल का राजा है। The Alpha and the Omega. जो अल्फा है, ओमेगा है। The beginning and the end. जो आदि है, जो अंत है। The first and the last. जो पहलौटा है और जो अंत है। The faithful and amen. जो विश्वास योग्य और आमीन है। Whosoever will call upon his name. जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, They will be saved. वो उद्धार पाएगा। They will be saved. वो उद्धार पाएगा। You are saved, my dear sister. मेरी प्रिय बहन, आप उद्धार पा चुकी हैं आज, Because you have believed upon Jesus, the only begotten Son of God. क्योंकि आपने परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। Thank you, Jesus, that you are cleansing my brother from all his sins. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप मेरे प्रिय भाई को इनके तमाम पापों से आप इनको शुद्ध कर रहे हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु that यीशु you're embracing them. कि आप इनको गले लगा रहे हैं, You're kissing them. आप इनको चूम रहे हैं And you are taking all the filthy rags of sins away from their life. और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कि पाप के उन मैले चीथड़े कपड़ों को आप इनके जीवन से दूर कर रहे So I can हैं। see it right now. हाँ, मैं इस बात को देख पा रही हूँ That he is removing all the filthy rags from your body. कि प्रभु यीशु मसीह आपके देहों से उन तमाम प्रकार के गंदे मैले चीथड़े पापमय कपड़ों को दूर कर रहे And हैं। right now he is clothing you with the robes of righteousness. और इसी समय परमपिता परमेश्वर धार्मिकता के वस्त्रों को आपको पहना रहे हैं। Jesus is giving you new life, प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन दे रहे a हैं, new heart. एक नया मन दे रहे हैं। Oh yes, hallelujah. हालेलुया।
Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं, oh, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, No more sin, अब और कोई पाप मत करना, but live in the holiness. परंतु अब पवित्रता में जीवन जीना। I'm giving you my righteousness. यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे अपनी धार्मिकता दे रहा It's हूँ। not your ये righteousness. तेरी धार्मिकता नहीं It's है, not by your good works or deeds. ये तेरे धर्म में अच्छे कामों के द्वारा नहीं है। It's only because you believed upon me, Jesus says. यीशु कह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मेरे नाम पर विश्वास रखा And है, that's why और इसलिए you have become the righteousness of God now in me. तुम अब मेरे जरिए परमपिता परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। This is the grace of Jesus. ये तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Grace will change your life. अनुग्रह आपके जीवन को तब्दील कर देगा। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। God is transisting few people. लोगों को परमपिता परमेश्वर बदल रहे हैं। Oh, right now He's transisting you from the kingdom of darkness to the kingdom of light. परमपिता परमेश्वर आपको उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश करा रहे हैं। No more darkness. अब और कोई अंधकार नहीं, Oh, but walk in the light of the Lord. परंतु अब प्रभु की ज्योति में आप चलिए, Because Jesus Christ is a true light. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो वास्तविक ज्योति है। Jesus Christ is a savior. प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। Thank you, Lord, for transforming lives. धन्यवाद पिता परमेश्वर की आप जीवनों को बदल रहे Thank you, हैं। Lord, for saving lives. धन्यवाद आप जीवनों को बचा रहे हैं। Glory to God. धन्यवाद पिता, महिमा मिले आपको। All glory to the Father, Son, and the Holy Spirit. सारी महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देते In हैं। Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Oh, what a mighty move of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा का कितना अद्भुत यहाँ चलन है। Dear people of God, dear people of परमेश्वर के God, लोगों, if you have been blessed अगर आप आशीषित हुए हैं and God has talked with और you, प्रभु ने आपसे बातें की हैं, kindly share this video with all your family and friends तो निश्चय आप इस वीडियो को अपने प्रियों, मित्रों और परिवार के साथ बांट सकते हैं, so that this gospel be reached to everyone. ताकि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक मनुष्य तक पहुंचे। Know that Jesus Christ is the Savior. Amen. स्मरण रखिए, जान रखिए, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। May God richly bless you all. प्रभु आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे। May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ always be with you all. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नित्य आप सबों के ऊपर बना रहे। May the peace of God Almighty always guards your heart, ओ परमेश्वर की शांति नित्य आपके हृदयों को सुरक्षित रखे and you be protected and be provided by God alone. और परमेश्वर पिता के द्वारा आप सुरक्षित पाए जाए और हर बातों का प्रबंध आपके लिए होने पाए। Stay blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आशीषित रहिए। See you next week. आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह। God bless you. God bless you.